Namole sir. I would like to say a few words about PHF here. PHF, that is Promesalon Homeopathic Forum, started with the vision of propagating homeopathy all over, especially in the rural areas where it is difficult to reach for the patients as well as for the homeopathic practitioners. And PHF is working towards this mission since more than 10 years now. We are a pioneer group on Telegram for homeopathic education called Ignited Minds by PHF, where around 3,000 homeopaths study on daily basis through rubric and case studies. Under the guidance of Dr. Liaquat Namole sir, Team PHF is working to convert GPs into homeopathy. And sir has mission of converting 10,000 GPs to homeopathy. Until now, we are successful in converting more than 2,000 general practitioners towards homeopathy under sir's teachings and guidance. We have conducted more than 3,000 webinars and seminars all over Maharashtra, and more than 200 webinars, 200 to 50 webinars till now. Seminars on special subjects like cancer, diabetes, infertility, pediatrics, skin diseases, and more also we are focusing on. And online coaching is also provided by Dr. Liaquat Namole sir to aspirant homeopaths across the globe. Since June 2022, we have been conducting this free webinar series every Thursday, where along with the faculty members, senior as well as junior homeopaths from all over India have been invited to share their learnings. As we follow the teachings of Guruji Dr. M.L. Sehgal sir, the method is simplified to understand the patient and converting saying of the patient into repertorial language and therefore easy to practice. Dr. Liaquat Namole sir has added various gestures to this method through his keen observation and years of hard work and study. And we are using these gestures in our daily practice with very successful results. We follow the teachings of Dr. Hahnemann sir, and we use our tools from provings of Materia Medica, repertory, along with the guidelines of organon and philosophy. We have simplified the meanings of rubrics so that it can be easily used by every homeopath. Now, as the time demands, we are also using lesser known remedies as well. We have also conducted included psychodynamics to understand the psyche of the patient as well as the philosophy of psychosomatic diseases. In short, we take holistic approach for treating the sick as per homeopathic principle of treating the sick and not the sickness. Apart from Telegram group, we also have study groups on WhatsApp, Facebook group called Humanopathy, as well as Instagram handle 24/7. We also have the YouTube channel called Ignited Minds by PHF, where we have more than 3,000 subscribers in just last 1 year. And all these 100 webinars are also available on our channel for to study all of us. So friends, let's get ready for today's grand celebration. And now I call upon Dr. Deepali Mehta for introduction of our first speaker. So with a big round of applause, I welcome all. Welcome, guys. Yes, Deepa. Good morning, everyone. Myself, Dr. Deepali Mehta. In the world of homeopathy, this Sunday morning will be a great morning because we are having many superstars of homeopathy on this platform today. I'm honored to introduce today's our speaker, Dr. Neelam Avtar Singh Madam. Dr. Neelam Madam has completed her DHMS in 1985, and since then she is practicing homeopathy. In 1993, she come in contact with Dr. Sehgal sir, and then she started practicing on mind method. Dr. Neelam Madam has 2 charitable OPDs and 1 her own clinic. She has also written a book on homeopathy, that is Marvel Sapphire. In this book, she shared 51 cases of her own experience. She is also a co-author of a book, Homeopathy and Mind, with Dr. Man sir and Dr. Bhupinder sir. She is former member of art group with Dr. Man sir. We all know her because of her daily rubric explanation on our many Telegram groups. She is very punctual and very
intelligent personality. I'm very thankful to her for her daily sharing of rubrics. She is also famous for her cases solved for gluten allergy cases, which are solved by her very easily. So now wasting much time, I welcome ma'am and I request ma'am to take a platform in her hands. Welcome ma'am. Thank you, Welcome, Didi. Deepa. Welcome. Welcome. जी, Welcome, thank ma'am. you, Dr. Mansi, Dr. Liaquat Nimole. So thank you so much. सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर मैं डॉक्टर निमोले को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ फॉर his perseverance, for his dedication and sincerity and completing 100 episodes of this learning. So many congratulations. आज जो मेरा लेक्चर है दैट इज ऑन चिल्ड्रन केसेस. तो चिल्ड्रन जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि बच्चों के केसेस में तो कैसे लेंगे, रूब्रिक्स नहीं ले होते, माइंड नहीं ले होता, ऐसे कैसे ले सकते हैं. तो मुझे लगता है कि बच्चों में के केसेस में दिस इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है. बहुत इजीली हम बच्चों में माइंड रूब्रिक्स पकड़ सकते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन है, एक स्पेसिफिक वे है जिसमें हम बच्चों के केसेस को बहुत आराम से ले सकते हैं. आज मैंने 8, 10, 12 केसेस निकाले हुए, जितना मेरे पास टाइम है अप टू 10, 15 जितने भी केसेस हो सकते हैं हम डीडी करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट मेडिसिन को और प्रैक्टिकली जो हमारा यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे. इन जनरल जो हम होम्योपैथी मेडिसिन यूज करते हैं बच्चों में या जो रूब्रिक्स ज्यादा यूज करते हैं, बच्चे कहना मानते हैं नहीं मानते हैं, कोई डर है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ नोट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. 2 बातें होती हैं. एक तो हम बच्चे का बिहेवियर नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू अदर पीपल जो अटेंडेंस होते हैं. दूसरा हम ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती है कि हम जस्ट देखते ही समझ आते हैं कि ये तो वो बच्चा है. So can you hear me? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. Your video is not visible. Yeah, video pause कर दी I think. Okay. ठीक है. तो अभी हम बात करेंगे कुछ केसेस की कि किस तरीके से हम केसेस लेते हैं. सबसे पहला केसेस के अकॉर्डिंगली ही बात करेंगे कि किस केस में क्या लिया और क्या किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करना है. सबसे पहला केस, एक बच्चा है, उसको बहुत देर से 1.5 साल से एलर्जिक राइनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है. बार एलोपैथी लेते हैं, बार एलोपैथी में उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है. हर 15-20 दिन के बाद बच्चा 10 बार हॉस्पिटल जा रहा है लेकिन उसको फिर भी बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा. विंटर्स में ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है और यहाँ पटियाला के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स को दिखाया हमने जो पीडियाट्रिशियंस हैं. हमारे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है राजेंद्र हॉस्पिटल, वहां पे. तो बच्चे को जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर्दियों में होती है, हर वक्त स्नीजिंग आना, चेस्ट ब्लॉक हो जाने. बच्चे से ज्यादा उसकी माँ को प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती थी कि बच्चा फिर से बीमार हो गया. तो हमारे लिए जो ये सब बातें इतने मायने नहीं रखती. सबसे ज्यादा मायने क्या रखते हैं कि बच्चा किस तरह का बिहेवियर करता है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, उसकी साइकी किस तरह की है. दोनों चीजें लेनी होती हैं, एक जनरल, एक ड्यूरिंग कंप्लेंट्स, ड्यूरिंग प्रॉब्लम. सो जब उससे पूछा गया कि किस तरह का इसका बिहेवियर है तो उन्होंने कहा कि कहना तो ये बिल्कुल ही नहीं मानता, टोटल डिसोबीडियंस, बिल्कुल नहीं मानता और चीजों की तोड़ फोड़, शरारती, इतना ज्यादा, डरता बहुत है, अंधेरे से डरता है, इंजेक्शन से डरता है, बातें बहुत करता है. लेकिन कोई आ जाए फिर इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है.
स्ट्रेंजर्स, कोई भी बाहर वाला उससे बहुत डरता है, उनके पास नहीं जाता, तब इसको कुछ नहीं होता। घर में अदरवाइज वो सारा दिन छलांगे लगाता है। दिस इज द केस। बस इसमें से ही हमने 5, 7, 8 रूब्रिक निकालने हैं एंड मेडिसिन आपके सामने होगी। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं इसको इंटरएक्टिव सेशन ना करते हुए मैं खुद ही बताती हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें लिया। पहला, डिसोबीडियंस, कहना नहीं मानता, डरता बहुत है, अकेला नहीं रह सकता। फियर डार्क, इंजेक्शन से तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है क्योंकि इसके इतने बार इंजेक्शन, इतनी ज्यादा ड्रिप्स लग चुकी हैं, तो ये अस्पताल जाते ही रोना शुरू कर देता है कि मैंने नहीं जाना। फियर एलोन, फियर इंजर्ड, मिस्टीवियस, शरारती, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, डिस्ट्रक्टिवनेस, तोड़ फोड़ करनी, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जंपिंग आउट ऑफ बेड। ये जब इतने रूब्रिक्स डाले, सम टाइम तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि जो मेडिसिन निकलती है वो पहले ही कॉलम में सब के सब रूब्रिक्स कवर करती है। तो इस बच्चे को सट्रामोनियम ने सबसे ज्यादा पहले नंबर पे कवर किया, उसके बाद कैलकेरिया कार्ब, हायोसेमस, लेकेसिस, फास्फोरस। हर मेडिसिन के अपने ही कुछ सिम्टम्स होते हैं, अपने कुछ रूब्रिक्स होते हैं जो पर्टिकुलर उस बच्चे में होने चाहिए। तो इसको सट्रामोनियम दी, बीच में 30 पहले, देन 200, फिर उनको लगने लगा कि इसको तो आराम आ रहा है, लेकिन फिर भी बीच में एक आधी बार हुआ। पहले वो इनहेलर बहुत लेता था, लेकिन जब से मेडिसिन स्टार्ट की तब से इनहेलर बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल भी नहीं लिया। मैंने उनको फिर भी बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि उसका सांस बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो आप इनहेलर एक आधी बार दे सकते हो, क्योंकि बच्चों में मैं रिस्क नहीं लेती कि बच्चा तड़पता रहे, उसको सांस नहीं आ रही। सो अगर एक आधी बार एलोपैथी की जरूरत है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन से हमारे फर्क पड़ रहा है फिर उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट 1 महीने के बाद उन्होंने बोला कि कोई एलर्जी नहीं है, कोई स्नीजिंग नहीं है, जुकाम नहीं है, कोई बुखार नहीं है। पहले तो ये चीजें हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में होती ही रहती थी। उसकी मदर इतनी ज्यादा डरी हुई थी विद ऑल दीज थिंग्स। शी सेड के बस जिस दिन भी 2-4 छींके आ गई उसका मुझे फोन आ जाता, डॉक्टर साहब उसको 4 छींके आ गई, क्या करूं। उनको 0 में दिया हुआ था सट्रामोनियम के, ये उसको दे दो। बेसिकली दैट इज प्लेसिबो। सो एक बार उसके छोटी छोटी फिंसियां हो गई तो भी आई गिव हिम 0 सट्रामोनियम। उसके बाद फिर 4 महीने बीत गए, नो एलोपैथी, नो इनहेलर, नो कफ। फिर चेंज ऑफ वेदर आया, चेंज ऑफ वेदर में फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर पहले आपकी 100% प्रॉब्लम है तो जो अगली बार प्रॉब्लम होगी वो आपकी 50% से भी कम होगी। तो इस बार ऐसे ही हुआ, खांसी भी नहीं थी, बुखार नहीं थी, जस्ट स्नीजिंग आई। और सट्रामोनियम पहले 30 दी थी, फिर 200 दी, इस बार 1F दी। उसके बाद उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं देने की जरूरत पड़ी। कहाँ पे एलोपैथी की इतनी दवाइयां चल रही थी, इतनी दवाइयां चल रही थी, और 4-4 दिन के बाद, 10-10 दिन के बाद उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था। लेकिन इस बार होम्योपैथी लेने के बाद उसको बिल्कुल भी दोबारा हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार भी नहीं। एंड उसकी मदर को मैंने बोला कि अब आप बताओ कि कैसे हो, आपका हाल कैसा है। शी सेड कि अब तो मैं बिल्कुल ही बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब तो उसको 6-8 महीनों से कुछ नहीं हुआ। होम्योपैथिक मेडिसिन जब एक्ट करती हैं तो इसी तरह से एक्ट करती हैं। एक ही बार की, एक ही अगर वेल सिलेक्टेड मेडिसिन है तो वो बच्चे को बिल्कुल 100% ठीक कर देती है। अगर हम, ये एक और केस है, इसमें भी अस्थमा है, बहुत बुरी तरह से बच्ची को हुआ है। बच्ची 9 साल की है जब मेरे पास आई थी। ब्रोंकियल अस्थमा, आयुर्वेदिक भी ली, एलोपैथी तो ले ही रही है, लिवोलिन चल रहा है, ब्यूडिकॉर्ड चल रहा है, पंप दिन में 3-3 बार चल रहा है। तो जब, और खांसी लगातार, कॉन्टिन्यूस खांसी, सांस में मुश्किल, और फीवर बहुत ज्यादा, हमेशा ही हाई फीवर रहता है, और चेंज ऑफ वेदर में ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
एंड कोल्ड में, ठंड में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ कि जितने मैंने रूब्रिक्स डाले, आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि उसके आसपास कोई भी और दवाई नहीं थी। तो जब इससे पूछा गया कि कैसा बच्चे का स्वभाव कैसा है, तो उन्होंने बोला कि कहना तो मस्ती से ही मानती है, दिल करता तो मान लेती है, नहीं दिल करता तो ना से, और लेकिन जिद्दी बहुत है। जिद्दी बहुत इस तरह से कि जो चीज इसने लेनी है का मतलब लेनी ही है, पीछे ही पड़ जाती। और ठंड के मौसम में, चेंज ऑफ वेदर में ये प्रॉब्लम इसको ज्यादा होती है। बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, टॉपर है, हमेशा फर्स्ट आती है। तो टॉपर के बारे में अभी इस केस के बाद मैं कुछ आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो टॉपर्स में हम यूज कर सकते हैं। और इच्छाएं इसकी इतनी है, पता नहीं क्या क्या मांगती रहती है, नित्य हर रोज इसको नई चीज चाहिए, एवरीडे ले दो मुझे, प्लीज ले दो मुझे, पीछे ही पड़ जाती है कि लेनी ही है। अदरवाइज होमवर्क करना पूरी जिम्मेदारी के साथ, कभी मैंने इसको नहीं पढ़ाया है। और इतना अच्छा लिखती है, बहुत अच्छे ढंग से सुंदर सुंदर लिखाई बना के अपनी चीजें में बिल्कुल संभाल के रखती है। खाने में बहुत ज्यादा, ये खिला दो, वो खिला दो, बाहर का खिला दो, इतना मन में लालच है, इतना मन में लालच है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। सो इस बेसिस के ऊपर मैंने जो रूब्रिक्स लिए, पहले अस्थमा, जब भी कोई बीमारी होती है तो मैं हमेशा उस बीमारी का रूब्रिक ले लेती, चाहे मैं उसको कंसिडर करूं चाहे ना। अस्थमा, ब्रोंकियल, वेदर, चेंज ऑफ वेदर एग्रेवेट, कोल्ड एग्रेवेट, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, लेकिन ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, हेड स्ट्रॉन्ग, एंड डिजायर्स न्यूमरस वेरियस थिंग्स, बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फास्टिडियस। और इसके नाक में हमेशा ब्लड आता रहता था, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि हमेशा से इसके ब्लड चलता ही रहता है। और जो एक मैंने और लिया, दो रूब्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लिए, ग्रीड, लालच, ग्रीड, ग्रीड, क्यूपिडिटी इन ईटिंग, खाने में, वैसे भी चीजों की भी, जब भी बच्चा बहुत ज्यादा चीजें चाहता है, वो आता है डिजायर्स न्यूमरस वेरियस थिंग्स अलोंग विद ग्रीड, लालच है, बहुत ज्यादा लालच है। और इनका एक और जो रूब्रिक था, वो कहते कि ये किस तरह के, मैंने कहा गेम्स खेलती है बाहर अंदर, कहते ये तो गुड्डियों पटोलों के साथ खेलती है। तो बहुत ज्यादा इसके जो टॉयज होते हैं वो फेमिनिन काइंड ऑफ होते हैं। तो मैंने इसमें इफेमिनेट भी लिया। जरूरी नहीं होता कि इफेमिनेट हम मेल्स में लेंगे जो फीमेल्स की तरह बात करते हैं, लेकिन इफेमिनेट इसमें लिया। एंड आई वाज एस्टोनिश्ड कि इन सभी रूब्रिक्स में पल्साटिला वाज द ओनली मेडिसिन। उसके बाद सिलिशिया आती है, आर्सेनिक, एल्केनिया, लाइको एंड ऑल दैट, लेकिन उनमें डिजायर सिलिशिया में नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलिशिया में नहीं है, आर्सेनिक में नहीं है। तो आई गेव हर पल्साटिला 30 few डोजेस। और जब मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा कि रोती कितने, तो रो तो हर मिनट पे, हर जितनी चीजें चाहिए उतनी बार ही रोना है। सो रोने का भी, वीपिंग इजीली। इसको जैसे ही 30 की एक डोज दी, पहली बार में ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। नो फीवर, नो नोज फ्लुएंट, नो कॉफ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। तो इसकी मेडिसिन भी तकरीबन 1 साल तक चली। और पल्साटिला 30, 200 एंड 1 बस 3 डोजेस अकेली मेडिसिन की थी। और इस बात को बहुत साल हो गए, 2018 का केस है। आज भी उसके पेरेंट्स मेरे पास दवाई लेने आते हैं और कभी भी उसको दोबारा जरूरत नहीं पड़ी। मैंने उनको फिर भी एक पल्साटिला 30 की एक बॉटल 1 ग्राम की बना के दी थी कि कभी भी जरूरत पड़े तो वो आप दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि उसको यूज करने की इनको जरूरत पड़ेगी। सो इस तरह से जैसे ही हम अप्रोप्रिएट रूब्रिक्स की सिलेक्शन करते, देखो दिस इज वेरी इजी। आई बिलीव इन सिंपल होम्योपैथी के
सिंपलिसिटी में मैं ज्यादा विश्वास करती हूँ। ये नहीं कि बहुत लंबे लंबे बहुत डिफिकल्ट रूब्रिक्स को ढूंढो, सिर्फ ढूंढो ओनली जो बात बच्चा बोल रहा है, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं या अटेंडेंट बोल रहे हैं, उस बात पर ध्यान दो, नथिंग एल्स, बिल्कुल भी नहीं। एक मुझे अभी एक केस याद आया। अब एक बच्चा बाहर बैठा अपने फादर के साथ, तो रोई जा रहा है। मैंने बोला जी क्या हो गया, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो पहले देख लेते हैं। कहते नहीं जी, डॉक्टर से बहुत डरता है, इंजेक्शन से बेसिकली डरता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं जिनको देख रहे हैं उसके बाद। तो उन्होंने डॉक्टर अवतार सिंह को दिखाना था एंड अंदर आए, बच्चा फिर कह रहा कि बाहर चलो। मैंने यहाँ नहीं रुकना, बाहर चलो। तो जैसे वो अंदर है, डॉक्टर साहब लिखने लगे। मैंने उनको बोला कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आप अकेले इसको हायोसेमस की एक डोज दो, उसके बाद अगली बार बात करेंगे। उसको खांसी वगैरह बहुत ज्यादा थी। जब वो अगले हफ्ते वो पेशेंट आए तो उसकी खांसी भी ठीक थी एंड यू वोंट बिलीव, वो अपने साथ एक इंजेक्शन और सिरिंज लेकर आया कि अब मुझे इसका डर नहीं लगता। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, कि सचमुच हायोसेमस ने इतना बड़ा असर कर दिया कि उसको अब डर नहीं लगता था। तो बहुत सारे फियर डार्क एंड फियर इंजर्ड में 5-6 मेडिसिन है जो हम बहुत कॉमनली लेते हैं। जैसे आर्सेनिक है, उसके मैंने बहुत सारे बच्चे ठीक किए आर्सेनिक में। आर्सेनिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फियर डार्क, फियर इंजर्ड एंड वेरी फास्टिडियस। बहुत ज्यादा वो पर्टिकुलर होता है, बैग भी संभाल के रखना। और जो पल्साटिला अभी दी है फास्टिडियस बच्चे को, पल्साटिला दोनों में ही है, फास्टिडियस में भी है, फ्रिवलस में भी है। सो आर्सेनिक का बच्चा बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होता है, उसकी हैंड राइटिंग, उसका बैग बहुत सेट होता है। एक बार मेरे पास एक बच्चा मेरे एक यूनिट पे लेके आए, तो उसकी मदर ने बोला डॉक्टर साहब ये डरती बहुत है। पहले सिम्टम्स वगैरह लेके कुछ पल्साटिला दिया, शायद टेरेंटुला दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा ये अपनी बुक्स कॉपीज कितनी साफ रखती है, तो उन्होंने कहा कि इतनी साफ रखती है कि अगले साल चाहे ये नई की नई बाजार में बेच। सो दैट वाज फास्टिडियस टेस्ट। बहुत ज्यादा साफ सफाई, बहुत छोटी छोटी एक्यूरेसी पे ध्यान देना, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना, ये आर्सेनिक इस तरह के बच्चे होते हैं। तो जैसे ही मैंने उनको आर्सेनिक दी, उसके डर सब गए। पहले वो हमेशा मदर का हाथ पकड़ के जाती थी जहां पर भी जाना, और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। घर में छिपकली आ गई है तो उसने चीखें मारनी, घर में कोई कॉकरोच आ गया। और मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि फियर ऑफ लिजर्ड, छिपकली का जो डर है, वो हमारे रूब्रिक्स में इधर तो नहीं है कहीं भी, एक आधी मेडिसिन है, लेकिन आर्सेनिक में बहुत ज्यादा है। सो हम बात कर रहे थे कि वो बच्चा आया, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक हायोसेमस, एक सट्रामोनियम, जो बहुत डरते हैं, इंजेक्शन से बहुत डरते हैं। लेकिन दोनों को हम पहचानेंगे कैसे, ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है कि वो हायोसेमस है या सट्रामोनियम है? सट्रामोनियम में हमेशा क्लिंगिंग बहुत ज्यादा होता है। वो हम अपने पेरेंट्स के साथ जिसने भी उठाया वो उसको चिपका ही रहेगा, और हायोसेमस वाला बोलेगा कि मैंने तो अंदर जाना ही नहीं है। सट्रामोनियम को लगता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरा फादर, मेरी मदर, वो मुझे बचा लेंगे, लेकिन हायोसेमस कहते हैं मैंने तो अंदर ही नहीं जाना। बहुत एब्यूसिव होते हैं, बहुत गालियां देने वाले हायोसेमस वाले होते हैं। ऐसे ही एक बार पहले भी एक केस आया जिसमें बच्चे को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी, तो उसने पूछा अपने फादर से कि कहीं डॉक्टर मेरे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, होम्योपैथी दवाई लेनी है, उसमें इंजेक्शन नहीं होते। और सिम्टम पूछते पूछते मैंने पूछ लिया कि इंजेक्शन से कितना डर लगता है। वो तो बच्चा कितने लोग बैठे थे, बच्चे ने अपने फादर गंदी गालियां दी, कहता तुम कहते थे कि डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाती, ये तो मेरे से इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। इस तरह का हायोसेमस होता है। सट्रामोनियम वाला हमेशा क्लिंग करेगा और हायोसेमस वाला हमेशा भाग जाएगा, और ये बच्चा भाग गया। अगर हम इसको जैल्सीमियम के साथ कंपैरिजन करते हैं, इसका जैल्सीमियम में भी फियर डार्क है, फियर इंजर्ड है, जैल्सीमियम में भी क्लिंगिंग है,
सेट्रामोनियम में भी क्लिंगिंग है, हायोसेमस में नहीं है। तो इसकी क्लिंगिंग और जेलसीमियम की दोनों की सट्रा की कितना डिफरेंस, किस तरह से इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। जो जेलसीमियम होता है वो अपनी माँ को आवाजें लगाता रहता है, या किसी को भी, फादर को, मदर को, कि मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो, और पास बैठ जाओ और मुझे हिलाओ मत, बस ऐसे ही पकड़ा हुआ है मेरे ऊपर हाथ रख के से आराम से बैठे, हिलाओ मत। क्वाइट वांट्स टू बी, बिल्कुल शांति चाहिए, ना हिलाओ ना छेड़ो, कुछ ना करो, बस मेरे पास बैठे। लेकिन सेट्रामोनियम को कोई भी क्वाइट वाला कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, उसके पास होने चाहिए, चाहे कुछ भी बातें करते रहो, कोई बात नहीं। सो इस तरह से ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनके थ्रू हम मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट केस है, एक बच्चा आया मेरे पास, बहुत छोटा बच्चा, 5 साल का। उसकी दादी उसको लेके आई, कहते कि स्कूल नहीं जाता आजकल। मैंने कहा क्यों नहीं जाता? तो जाता ही नहीं है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहते इसका नाक बहता रहता है और इसको खांसी है, जुकाम है, तो ये स्कूल नहीं जा रहा। बस इतनी सी बात हुई तो मैंने एक मेडिसिन कोई दे दी। लेकिन अगली बार आके बोला, मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं जाता? जुकाम कोई इतनी बड़ी बीमारी थोड़ी है कि स्कूल नहीं जाएगा। कहते नहीं जी, बात तो कुछ और है। मैंने कहा क्या? कहते कि इसका नाक बहता रहता है, बच्चे इसको छेड़ते हैं तो इसको बहुत बुरा लगता है। ये कहता मैंने स्कूल ही नहीं जाना, बच्चे मुझे मेरे नाक बहने की वजह से बार बार कुछ ना कुछ कह देते। ये इंसल्ट है इसकी, ये बेइज्जती है इसकी। मैंने स्टेफिसेग्रिया 30 की 2 डोजें दी और उसके बाद वो बच्चा अगले दिन से स्कूल जाने लग गया, उसका नाक ठीक हो गया। इस तरह छोटी छोटी बातें, क्योंकि हमारे यूनिट्स में बहुत ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, हम जरूरी नहीं कि लंबी लंबी केस हिस्ट्रीज ले सकें। कई बार लंबी ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा हर पेशेंट को 100 पेशेंट्स देखने होते हैं, तो इतना बस 2 बातें बोली उसी के बेसिस के ऊपर। सो जैसे ही इसको स्टेफिसेग्रिया दी, उसी से वो बेइज्जती वाला फैक्टर भी निकल गया और जो उसका जुकाम वगैरह था वो भी ठीक हो गया। सिमिलरली एक और केस हायोसेमस का है, ये भी अस्थमा का केस है। एलर्जी का अस्थमा विंटर में होता है, खांसी, सभी के एक जैसे सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ रिलेटेड के वेदर चेंज पे होता है और कोल्ड के साथ होता है। चेस्ट में वीजिंग होती है, ग्रीन डिस्चार्ज है। ब्यूरिकॉट 2 पफ्स रोज चलते हैं, आस्तालिन के भी 2 पफ चलते हैं। आई डोंट कंडेम एलोपैथी, लेकिन एलोपैथी में केमिकल्स होते हैं, वो सिर्फ कुछ देर के लिए रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन वो परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते। बच्चों की इम्यूनिटी बल्कि लो होती जाती है, वो ज्यादा सेंसिटिव होते जाते हैं, वो ज्यादा प्रोन होते जाते हैं इन बीमारियों के लिए। सो जब ये बच्चा आया तो उन्होंने बोला कि इसको बहुत ज्यादा सांस की प्रॉब्लम है, सिंस बर्थ ही है। जब मेरे पास आया तो वो 12 साल का था, मतलब बहुत साल हो गए थे। तो मैंने कहा कैसे? कहते जी इसको जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो जाए, ये हमें बताता ही नहीं है। मतलब सांस इसका मुश्किल से आ रहा है, वो तो हमें पता चलता है कि तेरा आज सांस बड़ा मुश्किल से आ रहा है, तुझे लग रहा है इतनी दूर तक व्हीजिंग की आवाज आ रही है, प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? कहते 5-5 दिन तो वो बताता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं बताता? बस इसी डर से कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे और मुझे इंजेक्शन लग, एक ही बात। तो इसको भी मैंने और भी सिम्टम्स लिए, इसको भी मैंने हायोसेमस दी, वेयर सेज ही इज वेन वेरी सिक, फियर इंजर्ड, और कुछ डर, और बिल्कुल हायोसेमस 30 की 200 भी नहीं दी, 30 की कुछ डोजेज से ही ये बच्चा ठीक हो गया। सो ये प्रैक्टिकल टिप्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम फिर एक अस्थमा के बच्चे की ही बात करेंगे। ये बच्चा मेरे पास 2009 में आया था। अभी रिसेंटली भी इसके मदर आए थे, बोले कि बस वो तब की दवाई ली हुई है, कभी कुछ नहीं हुआ। ये भी अस्थमा का पेशेंट है। आज वो 25-26 साल की लड़की हो गई है। तो अस्थमा है 5 साल से, ये 2009 की बात है।
सांस बहुत मुश्किल आता है, नाक में से पानी बहता रहता है, बहुत स्नीजिंग आती है, सफोकेशन, घुटन, धुआं। दिवाली का जब मौसम होता है तब तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल इनहेलर रोज लेते हैं, एंड वीजन एक टैबलेट है, वो भी इसको रोज बीडी 2 टाइम्स देनी पड़ती है। तो जब स्वभाव के बारे में पूछा गया कि किस तरह का स्वभाव है, तो उन्होंने बोला कि वैसे तो ये शांति रहती, इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी ये जिद्दी बहुत है और जिद्दी बहुत है, और खाने पीने का इसको स्पाइस वाली चीजें खाने का ज्यादा शौक है कि थोड़ी मिर्च मसाले वाली चीजें इससे, और उनसे इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन इसको खाने पीने का बहुत शौक है। मैंने कहा स्वभाव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। कहते बड़ी इंटेलिजेंट है, हमेशा फर्स्ट सेकंड आती है, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैथमेटिक्स में ये बहुत अच्छी है, 100% मार्क्स आते हैं। तो मैंने कहा वेरी गुड, चुस्त है, तेज है, एक्टिव है, बहुत एम्बिशियस है, किसी कंपनी की सीईओ बनना चाहती है बड़ी होके। तो फिर उन्होंने दूसरी बात बोला कि इसका मैथमेटिक्स डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, कभी भी 1 नंबर भी कम नहीं गया। तो हमारे पास ऐसे कुछ रूब्रिक्स होते हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। इसमें मैंने लिखा अस्थमा, हे फीवर, कोल्ड एग्रीवेट। फूड्स में स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, हाईली सीजनल फूड्स डिजायर में डाला। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी बहुत है, कहना गुना तो ठीक है, शांति है, कोई इतना ज्यादा नहीं है कुछ भी। चेंज ऑफ वेदर एग्रीमेंट, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था दैट वाज मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग एप्ट फॉर। कई बार जो बात पेशेंट 2 बार, 3 बार, 4 बार बोलते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कैलकुलेट एप्ट फॉर, इसमें हमारे पास 4 मेडिसिन हैं, और सबसे पहले जो इन रूब्रिक्स में आई दैट वाज नक्स वोमिका। इसमें कॉकुलस है, इसमें लैकेसिस है, और एक और मेडिसिन है। लैकेसिस बहुत आगे तक है, लेकिन उसमें कोई बच्चे ज्यादा जिद्दी नहीं होते, वो तो प्लेफुल होते हैं, और कॉकुलस वाले वैसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। तो मैंने उनको नक्स वोमिका 30 की एक डोज दी। अगली बार आके बोले कि मच बेटर। फिर 1-2 महीने के बाद फिर से 30, 200 और 6 भी दी इसको, बस कोई 1M तक नहीं पहुंची। और 2009 में स्टार्ट किया था, 2010 में 1 ईयर तक ये सब चलता रहा। और अभी रिसेंटली इसके मदर आए, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल ठीक है, तब भी से ठीक है। कमाल ही होगी कि होम्योपैथी ने इनकी बेटी का बिल्कुल अस्थमा, जो इतना इनहेलर वगैरह चलता था, वो सब कुछ ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एक और पेशेंट की। ये वीट एलर्जी का केस है, 4 साल का बच्चा है, 4.5 साल का बच्चा। तो इस बच्चे को वीट एलर्जी थी बहुत शुरू से, जब 2 साल का था। पता ही तब चलता है जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसका जो टीटीजी था दैट वाज 131, जो कि लेस देन 20 होना चाहिए। अक्सर वीट एलर्जी के बच्चों में 2 चीजों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो उनकी डाइजेशन बहुत खराब रहती है, उनको कुछ भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। दूसरा, उनका एचबी बहुत ज्यादा लो होता है। तो इनको जब पता चला तो इन्होंने बिल्कुल वीट बंद कर दिया, और उसके बाद इनकी जो रिपोर्ट आई दैट वाज 31। सो जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स इस बच्चे के लिए, वीट एग्रीवेट, जिद्दी बच्चा है, अंधेरे से बहुत डरता है, अकेले रहने से बहुत डरता है, अंधेरे से, इंजर्ड होने से बहुत डरता है, घूमने फिरने का बहुत शौक है, और चीजों की, टॉयज की तोड़ फोड़। और मैंने पूछा कि इसका ड्राइंग में कितना इंटरेस्ट है,
तो ये ड्राइंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और साथ में इसको कारों का बहुत शौक भी, कार चलानी, कार पे अभी तो छोटा बहुत है, छोटी छोटी कार्स लेके झूम करके चलानी, कारों की कलेक्शन बहुत है इसके पास और बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा तेज। तो मैंने जब इसके सिम्टम्स लिए उनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो मेडिसिन आर्सेनिक, कार्सिनोसिन ये सब आ रही थी, लेकिन मेरे लिए दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो उसका आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, ड्राइंग बहुत अच्छी है, दूसरा उसका कारों के लिए प्यार। तो घूमना फिरना, आगे जाके 12वीं 13वीं मेडिसिन में कार लव आया, तो मैंने सोचा कि ये मेडिसिन हम नहीं छोड़ सकते और वो मेडिसिन थी ट्यूबरकुलाइन, जिसमें बच्चा बहुत जिद्दी होता है, बच्चा बहुत अंधेरे से डरता है, अकेला नहीं रह सकता, उसमें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, वॉन्डर, ट्रैवल एंड कार्स लव। तो इसको ट्यूबरकुलाइनम D30 में जो मेरा एक पैटर्न है, जिस पैटर्न से मैं वीट एलर्जी के केसेस को ठीक करती हूँ, 30, 200, 1M, फिर वही महीने के बाद रिपीट कर। अगर हम इसमें कारा में कार लव्स नहीं है, रूब्रिक नहीं है, लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर्स में, रडार में है, जिसमें 5 मेडिसिन है, मेडोरिनम, मर्क्सॉन, फॉस्फोरस, सट्रामोनियम एंड ट्यूबरकुलाइन। ये 5 मेडिसिन है, इसमें मैंने फॉस्फोरस भी यूज की हुई है और ट्यूबरकुलाइनम से ये बच्चा बिल्कुल 100%, केस तो बहुत लंबा है, तो 6 महीने के बाद 1 टाइम वीट स्टार्ट किया, देन 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, और हर बार ट्यूबरकुलाइनम 1M 1 मंथ के बाद रिपीट करते थे। आज ये 6 महीने से बिल्कुल ठीक है, 1.5-2 साल इन्होंने दवाई खाई और आज बिल्कुल ठीक है। सो आर्सेनिक, जर्सीमियम, कॉकुलस के बच्चे किस तरह के होते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि हायोसैमस वाला 4 दिन तक, 6 दिन तक बताता ही नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अनटिल अनलेस के पेरेंट्स ही खुद नोटिस कर ले, वो नहीं बताएगा। इसी तरह का कॉकुलस, उसको खेलने का बहुत होता है, प्लेफुल। बुखार हुआ, 99 हो गया, 100 हो गया, खेल ही जा रहा है, 101 हो गया, 102 हो गया, खेल ही जा रहा है। लेकिन जब 103 हुआ तो घर में आके किसी को नहीं बताता कि मुझे बुखार हो गया, अंदर जाएगा, जाके लेट जाएगा कि बस। फिर पेरेंट्स को पता चलता है कि लेट क्यों गया ये, जब देखते हैं माथे पे हाथ लगा के, ओहो इसको तो इतना बुखार है, दवाई दी और थोड़ी देर के बाद बुखार उतर गया। जैसे ही वो 100-101 हुआ, साथ के साथ ही वो फिर से उसका प्ले वाला फैक्टर स्टार्ट हो गया। और किसी को नहीं बताना ये बहुत ज्यादा, क्योंकि हर कंडीशन में ये कॉम्प्रोमाइज करता है। अब मेरे पास जो लास्ट केस है जो मैं बताना चाहती हूँ, दैट इज कार्सिनोसिन केस, क्योंकि कार्सिनोसिन मैं बहुत बार इस्तेमाल करती हूँ बहुत बच्चों के केसेस में, जिसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सारे आज के जितने भी प्रैक्टिकल टिप्स हैं आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से प्रूव किए हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बार बार जिनको यूज करते हैं। तो ये एक बच्चा था जो 10 साल का था और उसको आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। हमारे यहाँ पीजीआई है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वहां से उन्होंने 1.5 साल दवाई ली और वो तो स्टीरॉइड्स देते थे। तो इसके पेरेंट्स को पता था कि स्टीरॉइड्स ऐसे कुछ अच्छी चीज नहीं होते, इससे कोई बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो देन दे केम टू मी, मेरे से पहले किसी और होम्योपैथिक डॉक्टर को भी इन्होंने दिखाया, लेकिन 4-6 महीने लेने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये जब मेरे पास आए तो मैंने बच्चे के स्वभाव के बारे में पूछा कि किस तरह का स्वभाव है। मुझे लगता है कि स्वभाव जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे को बहुत ज्यादा पेन्स होती थी, अगेन द केस इज टू लॉन्ग, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट करके सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगी। बच्चा ऑलवेज टॉपर। पहले हम एक बात कर लें टॉपर्स वाली। टॉपर्स की 2 मेडिसिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली ऑरामेट, दूसरी कार्सिनोसिन। दोनों में फर्क क्या है? दोनों ऑलराउंडर है,
दोनों टॉप करते हैं, क्लास में भी, गेम्स में भी, हर चीज में टॉप करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जो कार्सिनोसिन होता है उसके ऊपर प्रेशर डाला होता है, उसके ऊपर डोमिनेशन होती है कि तुमने फर्स्ट आना है, तुमने ये करना है, तुमने ये अचीव करना है। ओनली देन ही डू ऑल दीज थिंग्स। लेकिन ऑरल मेट क्योंकि गोल्ड है, कहीं पर भी होगा वो चमकेगा, कहीं पर भी चला जाए। गोल्ड वाला अपने मन से रिस्पॉन्सिबल, कार्सिनोसिन वाले के ऊपर ये सब कुछ थोपा जाता है। तो ये कार्सिनोसिन का पेशेंट था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड के, ड्राइंग बहुत अच्छी थी, इंटेलिजेंट था, टाइडी। एक टाइडी रूब्रिक है जिसमें कार्सिनोसिन पहले अकेली हुआ करती थी। बच्चे ने अपना पटका बांध के, सरदार थे जुड़ा करके, अच्छा पटका पहन के, कपड़े पूरे ढंग के पहन के, इस तरह से आता था और मुझे लगता था कितना तैयार होके आया है। दैट वाज टाइडी। और मैंने पूछा कि कोई आप लोग में से कोई पेरेंट्स में से स्ट्रिक्ट है ज्यादा? तो उसकी मदर कहने लगी कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट, इसकी पढ़ाई के मामले करता तो खुद ही है, सारा अपने आप ही कर लेता है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, तो मैं कुछ ऐसे आलतू फालतू नहीं करने देती। डिस्ट्रक्टिवनेस, गुस्सा बहुत ज्यादा, फिर पछतावा, ये सारा कुछ लिख के तो कार्सिनोसिन मेडिसिन आई। और आप इमेजिन नहीं करोगे कि कार्सिनोसिन से ये बच्चा पूरा साल 1.5 साल लगा ठीक होने में। आज इस बात को भी 10-12 साल हो गए, बच्चा कनाडा में है और बहुत उसको दोबारा से कभी प्रॉब्लम नहीं। सो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की पूरी उसकी इम्यूनिटी बना के रखें, उसको बीमारियों से बचा के रखें, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गो फॉर होम्योपैथी। होम्योपैथी मेडिसिन दीजिए। एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनमें हो सकता है कि बच्चे की इम्यूनिटी लो हो, लेकिन ये मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे बच्चों की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। सो हमेशा बच्चों के लिए कभी अगर जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि नहीं बुखार उतरा, गिव हिम एलोपैथी। वो तो केमिकल है, उसने 4 से 8 घंटे काम करना ही करना है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप एलोपैथी से बीमारियां ठीक कर सकते हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेरी जो एक्यूट फेज है वो कवर की जा सकती है, बीमारी ठीक नहीं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज लेक्चर, क्योंकि 10:15 तक का टाइम था। सो आई थिंक अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हमने आज बहुत सारी मेडिसिन की है, छोटे छोटे टिप्स देखे हैं कि किस तरह से हम बच्चों में ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। एनीवन? थैंक यू डॉक्टर सीमा यादव। ये प्रैक्टिकल टिप्स आप अपनी कॉपी पे लिखिए और उनको बार बार पढ़िए। ये हमारे 100 टाइम्स 200 टाइम्स पता नहीं कितनी बार यूज हुए। ओके, आपने डॉक्टर पार्मल ने पूछा है कि वीट एलर्जी के केसेस में हम डोसेज किस तरह करते हैं, डोज किस तरह से देते हैं। मैंने एक, थैंक यू डॉक्टर रंजीत, मैंने एक पैटर्न फॉलो किया है, मुझे लगता है कि वो बेस्ट पैटर्न है, क्योंकि जब डॉक्टर मान ट्रीटमेंट करते थे वीट एलर्जी के केसेस का तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते थे, क्योंकि देयर वाज अ रीजन। मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले 30 पोटेंसी देके महीने में एक बार, अगले महीने 201 डोज, अगले महीने 1M1 डोज, और 1M1 डोज मैं हमेशा आगे देती रहती हूँ, हर महीने में एक बार। डॉक्टर मान सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए कि शायद उन्होंने कभी, वो कहते कोई सिम्टम्स ही नहीं है तो दवाई क्यों दूं। मैं कहती थी कि क्योंकि इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है इसलिए हमें दवाई देनी पड़ेगी, और मेरे पास मुझे लगता है 100 से ज्यादा क्योर्स है सीवियर डिजीज की, वीट एलर्जी के 100 से ज्यादा, ऑल रिकॉर्डेड, मेरे पास सब लिखे पड़े हैं केसेस, सबकी रिपोर्ट्स पड़ी हैं। सो इसका मुझे लगता है कि यही पैटर्न है कि पहले 30 दीजिए, फिर 200 दीजिए, फिर 1M दीजिए, हर महीने उसकी हम डोज रिपीट कर सकते हैं। और जब हर 3 महीने के बाद टेस्ट करवाना है,
और जब 2 बार टेस्ट ठीक आए, नॉर्मल आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसका वंस इन अ वीक स्टार्ट करना है, 3 मंथ्स के बाद फिर दोबारा टेस्ट करवाना है। अगर वो नॉर्मल है तो फिर 2 टाइम्स इन अ वीक, सेम उसी तरह हमने सारा कुछ जो ट्रांसपेरेंट रखना है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स, टीटीजी एंड एचबी, ये 2 रिपोर्ट्स होती हैं। एचबी इसलिए क्योंकि इन बच्चों का एचबी बहुत कम होता है, सो इस तरह से हम इनको ठीक करते हैं। जी रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, या बिल्कुल मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। नीलम दीदी, सो स्वीट ऑफ यू। Thank you. थैंक यू सो I'm मच sorry. डॉक्टर लियाकत। आई नो आज का टाइम स्केड्यूल बहुत टाइट है, जी सो जी, मैंने पूरा डॉट 10:15 बजे आई हैव थैंक यू, Yeah. थैंक यू। जिनको भी सवाल है, सी दिस रिकॉर्डिंग विल बी again posted on YouTube, on our YouTube channel, on Neelam Yeah. Didi's channel also, and on our Ignited Minds by PHF पे भी करा जाएगा। So anybody has जी। any question, they are free to ask the questions on YouTube. Yeah. Thank you. I thank you very much for your lovely lecture and selfless giving of the knowledge for which. Okay, so homeopathy, Thank not you, only thank me, you. the whole fraternity of homeopathy is very, very Uh. grateful to you, Neelam Didi. You've been always a sport, always thanking us. Thank you so much. Thank you, Dr. Liaquat. Thank you so much. Thank you. You are I so take this. generous, so nice. So I'm proud of you. Thank you, Yeah. thank you, thank you. Yeah. I am so proud to. I am so happy, proud, and honored to call you my sister. Thank you. Thank you so much. Thank you.